Hello, my dear psychology enthusiasts. I'm Tanya and I welcome you all to my channel Psyched by Tanya. In the last video, we started with attitude formation from chapter number 6, जिसमें हमने पढ़ा था the process and the factors which influence attitude formation. And in today's video, we are going to start with the next topic, which is attitude change. A very important topic. इससे question आता ही आता है, so do not miss this video. And also, I have found my class 12 notes for this particular chapter, and I am going to upload a PDF of this particular topic in the description box below. Do let me know if those notes help you. I'll be uploading it for other chapters too. And also, I have made a proper strategy video for you guys which helped me score 100 on 100 in psychology, and I'm definitely very sure it will help you guys too. So do not miss that video, go check it out, and without any further delay, let us just start with the topic. Okay, so let us now proceed with attitude change. Attitude change. During the process of attitude formation and also after this process, attitudes may be changed and modified through various influences. जब एटीट्यूड फॉर्म हो चुका होता है या हो रहा होता है तो काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसमें चेंजेस लाते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. सम एटीट्यूड्स चेंज मोर देन अदर्स डू. एक ऐसा एटीट्यूड जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फर्मली इस्टेब्लिश हो चुका है, जो आपके अंदर सेटल डाउन हो चुका है, आपकी वैल्यूज़ का पार्ट बन चुका है, उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. until very drastic change happens, until very drastic influence comes into place, तब तक वो चेंज नहीं होगा. बट कुछ ऐसा एटीट्यूड है जो अभी आप फॉर्म ही कर रहे हो, यू आर गैदरिंग ओपिनियंस अबाउट इट, यू आर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, एंड आप एटीट्यूड उसका फॉर्म कर रहे हो उसके टुवर्ड्स, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो उसको इन्फ्लुएंस करती है एंड उसमें चेंजेस लाने को प्रोवोक करती है. ठीक है. एटीट्यूड्स दैट आर स्टिल इन फॉर्मेटिव स्टेज आर मोर लाइक ओपिनियंस. ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बहुत सारे MCQs मैंने हर वर्कशीट में देखे हैं, पूछे ही जाता है. Attitudes that are still in formative stage are called what? So what the answer would be? Opinions. And if it comes, attitude in the formative stage are more like opinions. Attitudes in dash stage are more like opinions. कौन सा stage? Formative stage. ठीक है. And they are more likely to change compared to attitudes that have become firmly established and have become a part of the individual's values, as I explained. From a practical point of view, bringing about a change in people's attitudes is of interest to community leaders, politicians, producers of consumer goods, advertisers and others. जो ऐसे लोग हैं जिनका प्रोफेशन या जिनका बिजनेस डील्स विद पीपल, डील्स विद ह्यूमन बींग्स, तो उनका काम बन जाता है टू इन्फ्लुएंस देयर एटीट्यूड्स. ठीक है. जैसे इफ़ आई एम प्रोड्यूसिंग अ गुड, आई एम अ प्रोड्यूसर, आई विल सी कि लोगों का एटीट्यूड किस चीज़ के टुवर्ड्स पॉजिटिव है, किस चीज़ के टुवर्ड्स नेगेटिव है, किस फील्ड में मुझे वर्क करना है, मेरे ब्रांड के टुवर्ड्स हाउ डू पीपल फील, उनका क्या फीडबैक है, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दैट आई विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस देयर एटीट्यूड ताकि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, है ना. देन दिस इज़ हाउ दे वर्क. Unless we find out how attitudes change and what conditions account for such change, it would not be possible to take steps to bring about attitude change. That is true. Process of attitude change. अब कैसे actually attitude में changes लाए जाते हैं, क्या process होता है इस चीज़ का. Now the first and the second one, मतलब तीनों ही 3 processes हैं, they are very important. जो पहले 2 हैं, they are part of concept of consistency, कि attitudes के बीच में consistency होनी चाहिए, वरना एक imbalance आप नोट करते हो which is very uncomfortable to be with. ठीक है. एंड थर्ड वाला is pretty different, वो हम तीनों अभी पढ़ते हैं. ठीक है. The concept of balance very important. इसका डायग्राम बनाना is very important. It is proposed by who? Fritz Heider. Fritz Heider has proposed it, and it is described as what? The POX triangle, which represents the relationship between 3 aspects or components of attitude. P क्या होता है? The person whose attitude is being studied. O is another person. ठीक है. And X is the attitude object और attitude topic जिसके towards attitude form हो रहा है या जिसके बारे में attitude formation हो रहा है. ठीक है. So P is the person whose attitude is being studied, O is another person, and X is the topic जिसके towards attitude पढ़ा जा रहा है, the attitude object. And possible है कि तीनों ही इंसान हो, तीनों ही persons हो, क्योंकि एक इंसान के towards भी तो attitude form हो सकता है. The basic idea is that an attitude changes is there is a state of imbalance. PO attitude के बीच में, OX attitude के बीच में और PX attitude के बीच में. ठीक है.
दिस इज बिकॉज इम्बैलेंस इज लॉजिकली अनकम्फर्टेबल. अगर आप इम्बैलेंस की सिचुएशन में रहोगे तो यू वोंट बी एबल टू लिव कंफर्टेबली. देयरफॉर द एटीट्यूड चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ बैलेंस. उस बैलेंस को अटेन करने के लिए एटीट्यूड में चेंज आता है. एंड नाउ दिस होल कॉन्सेप्ट इज डिस्क्राइब्ड इन द बुक विद द एग्जाम्पल. एंड वो एग्जाम्पल है डाउरी का एग्जाम्पल, विच इज़ टू बी पुट इन योर आंसर शीट्स टू, अगर ये क्वेश्चन आता है तो पॉजिटिवली. ठीक है. Imbalance is found when all three sides of the POX are negative. तीनों ही चीज़ें एक दूसरे को पसंद नहीं कर रही है, तीनों का ही नेगेटिव ओपिनियन है एक दूसरे के टुवर्ड्स. तो इट इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ इम्बैलेंस एंड वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. ठीक है. और टू साइड्स आर पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव. तो टू पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, यानी कि थर्ड थिंग इज इंटरफेयरिंग बिटवीन टू थिंग्स विच आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. ठीक है. जैसे there are two people in a relationship and because of some third person that is being disturbed. ठीक है. easily समझ आएगा इस एग्जाम्पल से. ठीक है. देन बैलेंस कब देख पाएंगे हम? बैलेंस दिखेगा जब या तो तीनों ही चीज़ें पॉजिटिव हो, तीनों का एक दूसरे के टुवर्ड्स एटीट्यूड इज़ वेरी पॉजिटिव, वेरी हेल्दी. एंड अगर दो नेगेटिव्स एंड वन पॉजिटिव हो, दो चीज़ें हैं या दो इंसान हैं जिनको एक चीज़ नहीं पसंद है, तो उन दोनों के बीच में क्या होगी? दोस्ती हो जाएगी. बेसिकली मे बी there is some person which you don't like in class and एक इंसान है जिसको वो नहीं पसंद, एक और स्टूडेंट है, एक और आपका बैचमेट है who does not like that person. तो तुम दोनों आपस में उसकी बुराई करते करते दोस्त बन जाते हो. होता है ऐसा. सो दिस इज़ what it explains. तो अब जब इसका क्वेश्चन आएगा वी हैव टू मेक अ प्रॉपर डायग्राम इसमें नहीं है, मैं अभी जब एक्सप्लेन करूँगी तब समझाऊंगी. ठीक है. प्रॉपर डायग्राम बनाना है. पूरा जो एग्जाम्पल है डाउरी वाला जो अभी पढ़ेंगे वो बताना है किसने दिया है, फ्रिट्ज हाइडर ने दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस दिया है, ये पूरा हमें लिखना है, कुछ भी डिटेल मिस नहीं करनी है. ठीक है. एंड इम्बैलेंस और बैलेंस दोनों टॉपिक समझाना. कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस है तो ये नहीं सिर्फ बैलेंस समझा के आ गए, इम्बैलेंस भी बताना है कि ऐसे इम्बैलेंस होता है और फिर उसको शिफ्ट करते हैं किसमें? बैलेंस में, वरना मार्क्स आधे ही मिलेंगे. ठीक है. देन लेट्स नाउ जम्प टू द एग्जाम्पल. Consider the example of dowry as an attitude topic. ठीक है. ये हमारा attitude object हो गया, attitude topic हो गया. As a person P has a positive attitude towards dowry. ठीक है. Let us take it as an example. ये example basically मैं आपको मेरी लैंग्वेज में समझाती हूँ. There is a girl and a boy. ठीक है. उन दोनों के पापा की बात है. ठीक है. Now the father of the boy is P and father of the girl is O and the attitude object is dowry X. ठीक है. अब जो फादर ऑफ बॉय है, जो पी है, उनको डाउरी लेने में कोई दिक्कत नहीं है. दे आर वेरी मच फाइन कि ठीक है मुझे तो महंगे महंगे गिफ्ट्स चाहिए, मेरे को ला के दो. ही हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स एक्स. पी हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स एक्स. तो पी एक्स क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया. ठीक है. देन नेक्स्ट इज वॉट? जो ओ है, जो लड़की के फादर हैं, ही डज नॉट वॉन्ट टू गिव डाउरी, ही डज नॉट सपोर्ट दैट सिस्टम. तो उन्होंने तो मना कर दिया, नहीं भाई साहब मैं नहीं देने वाला हूँ डाउरी. ठीक है. तो पी ओ क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. बट द थिंग नाउ इज, क्योंकि द गर्ल एंड द बॉय लाइक्स ईच अदर एंड दोनों के फादर्स को भी आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है सच एंड दे आर वेरी मच ओके विद इट. तो ओ और पी के बीच में पॉजिटिव है. नाउ व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इज पी ओ इज पॉजिटिव, पी एक्स इज पॉजिटिव, बट ओ एक्स is negative. Now there are two positives and one negative, which is a condition of imbalance. अब हमें इसको टर्न करना है टूवर्ड्स बैलेंस. तो अब क्या कर सकते हैं? हमारे पास दो चॉइसेस हैं. या तो हम तीनों को पॉजिटिव करा दें या फिर हम एक जने का एटीट्यूड या तो नेगेटिव कर दें या पॉजिटिव कर दें. ऐसे ही कर सकते हैं हम. तो अब क्या करना है उसके लिए अपन को? let's say now we are changing the attitude of P towards dowry कि उनको भी लगने लग जाए that dowry system is not good and he refuses to take any gifts और he says that मुझे कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए, just give me a daughter for my son. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, पी एक्स नेगेटिव हो गया, ओ एक्स नेगेटिव हो गया एंड पी ओ पॉजिटिव है, विच इज़ वेरी मच फाइन. दोनों की आपस में बैठ गई है कि हम दोनों को ये डाउरी से मतलब नहीं है, उसको साइडलाइन कर दिया एंड अब हमारी डॉटर्स और सन की शादी करवा देंगे. डन, सॉर्टेड, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस हो गया प्रूफ. ठीक है, अब जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या हो सकता है कि जो लड़की के फादर हैं दे एक्सेप्ट कि ठीक है हम आपको डाउरी दे देंगे. अब क्या हो जाएगा, तीनों चीज़ें पॉजिटिव, दोनों के फादर्स में भी दिक्कत नहीं है, पी को भी एक्स मिल रहा है, डाउरी मिल रही है एंड ओ ने भी अग्री कर दिया टू गिव द डाउरी. तो तीनों चीज़ पॉजिटिव हो गई. देन अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस, शादी हो जाएगी. ठीक है.
सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. तो कुछ ना कुछ एटीट्यूड को चेंज करना पड़ता है टू ब्रिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस, राइट? Okay, so I have explained this whole example. In short, an attitude change will have to take place so that 3 positive relationships or 2 negative and 1 positive relationship forms in the triangle, ताकि उन लड़का लड़की की शादी हो जाए अच्छे से. ठीक है? ओके या तो एक एटीट्यूड चेंज होना पड़ेगा to bring in the concept of balance. Now the next concept is the concept of cognitive dissonance given by Leon Festinger. It emphasizes the cognitive component. कौन सा component? Cognitive. ABC में से C वाला component. ये याद रखना. Examples, ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं नोट करवा रही हूँ, ये MCQ point of view से बहुत important है. Here the basic idea is that cognitive components of an attitude must be consonant, यानी कि they must be in line with each other. They must support each other. They must complement each other. They should be logically in line with each other. If an individual finds that 2 cognitions in an attitude are dissonant, then one of them will be changed in the direction of consonance. अगर dissonance आ रहा है, अगर दोनों आपस में क्या है, consistent नहीं है, तो उनको change करना पड़ेगा ताकि वो एक line में आ जाए. For example, think about the following ideas. Cognition 1, पान मसाला causes mouth cancer which is fatal. ये तो समझ में आ रहा है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है. But then cognition 2 is I eat पान मसाला. अरे जब आपको पता है कि कोई चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, उससे माउथ कैंसर हो रहा है, तब भी आप उस चीज़ को खा रहे हो. आर दीज 2 आइडियाज कॉन्सोनेंट? नो. सो व्हाट इज कॉन्सोनेंट? कि इन दोनों में से एक चीज़ चेंज हो जाए और कॉन्सेप्ट आ जाए कंसिस्टेंसी का. Holding these 2 ideas or cognitions will make any individual feel that is out of tune or dissonant. कुछ ना कुछ तो दिक्कत है. ठीक है? Okay. Therefore, one of these ideas will have to be changed so that consonance can be attained. अब जो ये एग्जाम्पल है, कॉन्सोनेंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है माउथ कैंसर हो रहा है और हम सोच रहे हैं कि पान मसाला ये है, तो हम कॉग्निशन 1 को चेंज नहीं करेंगे कि पान मसाला इज गुड या इससे मन लग जाता है, इससे ऐसा हो जाता है. नो, नॉट एट ऑल. The thing which changes has to be logical. It has to be a healthy decision which has to be made. Okay. So in the given example, in order to remove or reduce the dissonance, I will stop eating pan masala. Cognition 2 has to be changed. कि मैं उस चीज़ को बंद कर दूंगा क्योंकि उससे माउथ कैंसर होता है. This way the decision would be healthy, logical and sensible way of reducing dissonance. अगर कुछ और ऑप्शन चूज कर रहे हो तो वो आपका सेंसिबल डिसीजन नहीं है. ठीक है. Festinger and Carl Smith, 2 social psychologists, conducted an experiment that shows how cognitive dissonance works. कौन से बॉक्स में है? बॉक्स 6.2. इट इज आगे आई गेस. अभी बाद में पढ़ते हैं इसको. ठीक है. Both balance and cognitive dissonance are example of cognitive consistency. Cognitive consistency का क्या मतलब है अब? Cognitive consistency means that 2 components, aspects or elements of an attitude or attitude system must be in the same direction. They must be in line with each other. They do not, oppose each other or contradict each other. Each element should logically fall in line with other elements. If this does not happen, then the person experiences a kind of mental discomfort कि something is not quite right within me, within the attitude system. In such a state, some aspect of attitude system changes in the direction of consistency because our cognitive system requires logical consistency, otherwise they cannot function properly. The 2-step concept. Now this is the third thing. The 2-step concept proposed by S.M. Mosen, an Indian psychologist, the only one proposed by Indian psychologist. According to him, attitude change takes place in form of 2 steps. First step, the target of change identifies with the source. इसमें इन्होंने 2 ऑब्जेक्ट्स बताए. टारगेट जिसको हमें चेंज करना है एंड सोर्स जिसकी वजह से वो चेंज होने वाला है. द टारगेट इज द पर्सन हुज एटीट्यूड इज टू बी चेंज्ड एंड सोर्स इज द पर्सन हुज इन्फ्लुएंस will provoke the attitude change. Identification is the first step. Identification is that जो टारगेट है और जो सोर्स है उनके बीच में पॉजिटिव एटीट्यूड हो या पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, एक लाइकिंग हो एक दूसरे के लिए. ठीक है. लाइकिंग और रिगार्ड फॉर द सोर्स. टारगेट की क्या है? रिगार्ड है फॉर द सोर्स कि वो जो चीज़ बोलेंगे वो एक्चुअली सेंसिबली सुनेंगे और समझेंगे. She puts herself or himself in place of the target and tries to feel her or him. Feel like her or him. जो सोर्स है वो अपनी आप को क्या करेगा? टारगेट की प्लेस पर रखेगा
और उसकी तरह एक्ट करेगा, उसकी तरह फील करेगा. द सोर्स मस्ट ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स टारगेट एंड द रिगार्ड एंड अट्रैक्शन बिकम्स म्यूचुअल. ठीक है, दोनों का आपस में एक सॉर्ट ऑफ रिगार्ड है, एक सॉर्ट ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन है कि ठीक है, हाउ दिस पर्सन बिहेव्स इन्फ्लुएंसेस मी. In the second step, the source herself or himself shows an attitude change by actually changing her or him a behavior towards the attitude object. ठीक है, बेसिकली अपना एटीट्यूड एक चीज़ के टूवर्ड्स चेंज करता है सोर्स, तो उसी की वजह से फैसिलिटेट होता है एटीट्यूड चेंज बिटवीन द टारगेट एंड द थिंग विच हैज़ टू बी चेंज्ड. Observing the source's changed attitude and behavior, the target also shows an attitude change through behavior. This is a kind of imitation or observational learning. अब समझ में आया, यहाँ पर ये MCQ में पूछा जा सकता है कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड चेंज है, कौन सा प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज है जिसमें हम इमिटेशन या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग शो करते हैं या हम देखते हैं. तो उसका क्या आंसर होगा? द 2-step कॉन्सेप्ट विच वॉज गिवन बाय होम? SM मोहसिन, एन इंडियन साइकोलॉजिस्ट. ठीक है, अब इस पूरे राम कहानी को समझने के लिए जो हमें इतने साइंटिफिक टर्म्स में बताई गई है, लेट अस टेक एन easy example which is given in the book. Preeti reads in the newspaper that a particular soft drink that she enjoys is extremely harmful. बट वो देखने के बाद भी उसको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो उसका एक फेवरेट सेलिब्रिटी है वो उस चीज़ को पी रहा है, तो शी इज़ ऑल्सो एसोसिएटिंग इट विद हिम. एंड एसोसिएशन, लर्निंग बाय एसोसिएशन भी याद रखना है इससे. ठीक है, जो हमने एटीट्यूड फॉर्मेशन वाली चीज़ देखी है. ठीक है, शी हैज़ आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद अ स्पोर्ट्स पर्सन हु वुड लाइक टू इमिटेट हर और हिम. ठीक है, तो अब उसने देखा कि उसका जो फेवरेट स्पोर्ट पर्सन है वो इस चीज़ को क्या कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है. तो उसने एसोसिएट कर लिया कि ओ दिस इज़ द ड्रिंक, पर ये तो हमें उसको पता है कि ये चीज़ हार्मफुल है, आया था न्यूज़पेपर में, बट शी विल इग्नोर दैट फैक्ट एंड शी विल रन टूवर्ड्स एसोसिएशन विद दैट स्पोर्ट्स पर्सन. तो अब क्योंकि वो उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं तो उसको क्या लगेगा, अरे यार ये तो मेरा फेवरेट स्पोर्ट्समैन पी रहा है, स्पोर्ट्स वुमेन पी रही है, तो आई विल ऑल्सो ड्रिंक इट. होगा ये चीज़. देन वॉट वुड हैपन इज, अब now suppose the sports person wishes to change his attitude towards that particular drink. अब क्या होगा, उन्होंने उसका एडवर्टाइज करना बंद कर दिया, उन्होंने उसको कॉम्प्लीमेंट करना बंद कर दिया और उन्होंने बताने लगे कि दिस ड्रिंक इज़ हार्मफुल एंड आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू ड्रिंकिंग दिस ड्रिंक. अब प्रीति ने देख लिया कि अरे यार ये तो इन्होंने चेंज कर लिया, ये चीज़ तो एक्चुअली हार्मफुल होगी. अब वो इसलिए नहीं कि मैंने पहले देख लिया था कि ये हार्मफुल है इसलिए चेंज कर रही है, वो इसीलिए चेंज कर रही है बिकॉज हर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ stopped drinking that drink. ठीक है, now suppose the sports person wishes to change people's attitudes towards the soft drink from positive to negative. The sports person must first show positive feelings for their fans. पहले वो देखेंगे कि हाँ ठीक है, मेरे फैंस मेरे से एसोसिएट कर रहे हैं, बोलेंगे कि आई डिडंट वांट टू मेक यू ड्रिंक दिस हार्मफुल ड्रिंक, आई वांट टू कीप यू सेफ वगैरह वगैरह करके एक पॉजिटिव रिगार्ड शो करेंगे कि आई केयर अ लॉट अबाउट यू, दैट इज़ व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि ये ड्रिंक आप मत पियो, इसकी जगह इस चीज़ को पियो. अब किसी और चीज़ का एडवर्टीजमेंट शुरू कर दिया उन्होंने. ठीक है, परहैप्स बाय सब्सटीट्यूटिंग इट विद अ हेल्थ ड्रिंक. If the person actually changes her or his behavior, it is very likely now that Preeti, the person who was her fan, his fan, will also change her attitude towards that drink and will switch to that healthy drink जिसने जब उसको उसने प्रमोट करा. समझ में आया? Now we'll first study this box जो हमने cognitive consistency वाले उसमें पढ़ा था कि कैसे cognitive dissonance actually work करता है, and then we'll see the factors that influence attitude change. Telling a lie for $20. After participating in a very boring experiment, a group of students were asked to tell another group of students waiting outside that the experiment was very, very interesting. For telling this lie to the waiting students, half of the first group was paid $1 and half were paid $20. After some weeks, the participants of the boring experiment were asked to recall the experiment and to say how interesting they had found that experiment to be. The responses show that the $1 group described the experiment as more interesting than the $20 group. The explanation was that $1 student changed their attitude towards the experiment because they experienced cognitive dissonance. क्यों? क्योंकि उनको अब ये चीज़ क्या हो गई, उस वाले कॉग्निशन 1 और कॉग्निशन 2 में पुट करते हैं. ठीक है, कॉग्निशन 1 क्या बोल रहा है, एटीट्यूड दैट एक्सपेरिमेंट वॉज वेरी बोरिंग. ठीक है, एंड कॉग्निशन 2 अब क्या बोल रहा है, क्योंकि उनको बोला गया था बताने के लिए कि इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. कॉग्निशन 2 बोल रहा है क्योंकि मुझे वो $1 मिला, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. अब ये तो थोड़ा सा फॉर्म नहीं कर रहा है ठीक से, तो उन्होंने क्या बोला
कि अरे यार एक्सपेरिमेंट बोरिंग था लेकिन $1 तो मिल गया, तो उनका कॉग्निशन 2 क्या हो गया, एंड आई गॉट द कॉग्निशन 1 को उन्होंने चेंज कर लिया, द एक्सपेरिमेंट वॉज इंटरेस्टिंग एंड आई गॉट $1 ऑल्सो। उन्होंने उसको शिफ्ट कर लिया, उसको स्विच कर लिया, ठीक है। द इनिशियल कॉग्निशंस वुड बी the experiment was very boring. I told the waiting student that it was interesting. I told a Roy for only $1. अब उनको क्या लग रहा है कि ये तो मैंने गलत कर दिया कि मैंने बाकी लोगों को सिर्फ $1 के लिए इतना बड़ा झूठ बोला, राइट। एंड उन्होंने अब इसको क्या चेंज कर लिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इट वॉज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग और मुझे तो $1 भी मिला टू टेल अदर पीपल अबाउट इट। अब कॉन्सोनेंस हो गया, ऐसे ही करके उसको स्विच करा। The $20 group did not experience cognitive dissonance, so they did not change their attitude towards the experiment and rated that it was very boring. The experiment was very boring. I told the waiting student that it was interesting क्योंकि मेरे को $20 मिला। उनको तो सही लगा कि क्या ठीक है, $20 मिला, मुझे मिला, इसलिए मैंने झूठ बोला, वरना एक्चुअल में इंटरेस्टिंग नहीं है। उनको कोई डिसोनेंस फील नहीं हुआ, दे वर वेरी प्रैक्टिकल। समझ में आया? सो दिस वॉज इट, इतना सा एग्जाम्पल है, ये ऐसा पूछा नहीं जाता है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज, वेदर एटीट्यूड विल चेंज एंड इफ सो टू व्हाट एक्सटेंट इज द क्वेश्चन दैट पजल्स मेनी साइकोलॉजिस्ट। अब क्या फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड चेंज? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग एटीट्यूड, कि जो ऑलरेडी एटीट्यूड एग्जिस्टेड है, एस्टैब्लिश्ड है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो ऑल 4 हमने फीचर्स पढ़े थे एटीट्यूड के पहले, वेरिएंस, एक्सट्रीमनेस, सेंट्रलिटी एंड मल्टीप्लेक्सिटी और सिंप्लिसिटी, तो वो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है। और सिग्निफिकेंस ऑफ द एटीट्यूड डिटरमाइन एटीट्यूड चेंज। इन जनरल पॉजिटिव एटीट्यूड्स आर ईजियर टू चेंज देन द नेगेटिव एटीट्यूड्स। किसी चीज़ के टुवर्ड्स आप नेगेटिव ओपिनियन होल्ड करते हो तो वो आप जल्दी से पॉजिटिव में शिफ्ट करने में एक्सेप्ट नहीं करते, बट पॉजिटिव चीज़ पता है किसी की और कुछ नेगेटिव आ जाता है तो तुरंत उस चीज़ को हम नेगेटिव टर्न कर देते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा सीन है, ठीक है। Extreme attitudes and central attitudes are difficult to change than less extreme and peripheral, जो ज़्यादा significant नहीं है आपके लिए, उन attitudes को जिसका आपका ज़्यादा firm establishment नहीं है या ज़्यादा आप उसको value नहीं करते, तो ज़्यादा extreme नहीं है, mid में lie कर रहा है, तो वो क्या होगा, जल्दी change हो जाएगा than the one which is very extreme and very central to you. Simple attitudes are easier to change and then multiple attitudes are, क्योंकि एक attitude change करना is fine, but एक एटीट्यूड जिसके टुवर्ड्स बाकी सारे एटीट्यूड इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जो आपके सिस्टम में है, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, दैट क्रिएट्स अ टोटल कन्फ्यूजन, जिसकी वजह से आपको इंटर्न उस एटीट्यूड को चेंज करने में प्रॉब्लम होती है एंड यू डू नॉट यूजुअली चेंज इट, ठीक है। इन एडिशन वन मस्ट ऑल्सो कंसिडर द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ एटीट्यूड चेंज। An attitude change may be congruent if it may change in the same direction as the existing attitude. For example, a positive attitude may become more positive or the negative may become more negative. अगर कोई चीज़ आपका किसी ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स मे बी फॉर अ ड्रिंक यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, अब आपको पता चलता है यार इसमें तो ये वाला मिनरल भी है, इससे तो स्किन भी अच्छी होती है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव हो गया, दैट इज कॉन्ग्रुएंट। आपका एटीट्यूड उस ड्रिंक के टुवर्ड्स ऑलरेडी नेगेटिव था कि दिस ड्रिंक इज़ वेरी हार्मफुल, अब आपको पता चला कि यार इसमें तो ये वाला केमिकल भी मिला हुआ है, इससे तो इंडाइजेशन क्रिएट होता है, इससे तो हमारी बोन्स वीक होती है, तो अब आपका वो एटीट्यूड और नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव टू पॉजिटिव। For instance, suppose a person has a somewhat positive attitude towards women empowerment. Reading about a successful woman may make it more positive, so it is a congruent change. On the other hand, an attitude change may be incongruent if it is in opposite direction. जैसे अगर आपको एक ड्रिंक पसंद थी बट अब पता चल रहा है इसमें तो ये वाला केमिकल है, वो बहुत हार्मफुल है, तो अब वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो गया। या आपको एक चीज़ बहुत नेगेटिव लगती थी या एक ड्रिंक बहुत नेगेटिव लगती थी बट आपको पता चला इसमें तो ये सारे मिनरल्स है, ये एक्चुअली इतनी अनहेल्दी नहीं है, तो अच्छी है, तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया। सो यू गेट इट। इनकॉन्ग्रुएंट इज जब डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है, पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया, पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो गया। एंड कॉन्ग्रुएंट इज पॉजिटिव से पॉजिटिव और ज़्यादा, नेगेटिव से नेगेटिव और ज़्यादा, ठीक है। नाउ दिस इज ईजी। इफ एन एटीट्यूड दैट it is found in general that congruent changes are easier to bring about than are incongruent changes. Congruency ज़्यादा, पॉजिटिव टू पॉजिटिव आप ज़्यादा एक्सेप्ट करोगे, नेगेटिव टू नेगेटिव ज़्यादा एक्सेप्ट करोगे rather than bringing a change in your attitude, ठीक है। Moreover, an attitude may change in the direction of the information that is presented or in a direction opposite to the information presented. Posters describing the importance of brushing one's teeth would strengthen a positive attitude towards dental care,
But if they are shown frightening pictures of dental cavities, they may not believe the pictures and they may become less positive about dental care. ऐसे थोड़ी ना हो जाता है. Research has found that fear, very important line ये आती है MCQs में बहुत ज़्यादा, that fear sometimes works well in convincing people, but if a message generates too much fear, it turns off the receiver and has little persuasive effect. इफेक्ट जो होता है परसुएशन का वो कम हो जाता है, बिल्कुल वर्क नहीं करता है अगर एक्सेसिव शो करते हो. थोड़ा बहुत फियर शो कर रहे हो कि यार ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो मे बी पीपल अग्री एंड दे ट्राई टू ब्रिंग अ चेंज इन देयर एटीट्यूड. लेकिन अगर आप एकदम ही अनबिलीवेबल चीज़ उसमें पोर्ट्रे कर रहे हो तो वो एटीट्यूड चेंज नहीं आएगा, पीपल विल जस्ट इग्नोर इट. देन कम सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. किसके टूवर्ड्स आप ये चीज़ समझ रहे हो, कौन बता रहा है आपको उस चीज़ के बारे में. सोर्स, क्रेडिबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस आर टू फीचर्स दैट अफेक्ट एटीट्यूड चेंज. एटीट्यूड्स आर मोर लाइकली टू चेंज जब वो हाईली क्रेडिबल सोर्स से आ रहा है देन फ्रॉम लो क्रेडिबल सोर्स. ठीक है, अगर मुझे मेरी फ्रेंड बता रही है अबाउट अ स्किन केयर प्रोडक्ट और उसकी स्किन बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आई विल टेंड टू बिलीव कि यार ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंड आई एम गोइंग टू यूज़ इट. तो सोर्स क्रेडिबल था क्योंकि उसकी स्किन अच्छी थी, तो अब मैं उसको मान जाऊंगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एडल्ट्स हु आर प्लानिंग टू बाय अ लैपटॉप आर मोर कन्विंस्ड बाय अ कंप्यूटर इंजीनियर, क्योंकि वो उसको ज़्यादा क्रेडिबल मानते हैं कि वो इस चीज़ के बारे में जानता है. ठीक है. एंड सपोज अ स्टूडेंट हु इज विलिंग टू बाय अ लैपटॉप फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो वो अपने फ्रेंड से ज़्यादा सुनेगा कि यार ये वाला माउस ज़्यादा अच्छा है, ये वाला कीबोर्ड ज़्यादा अच्छा है, तो ये ले ले तू. ठीक है, तो उसको वो ज़्यादा क्रेडिबल लगेगा. एंड वेन इन टर्न अ स्टूडेंट विल कम टू अ कंप्यूटर इंजीनियर, वो उसकी बात पे ज़्यादा विश्वास नहीं करेगा देन द बैचमेट हु हैज टोल्ड हिम. एंड सिमिलरली जो एडल्ट है वो बच्चों की बात पे विश्वास ना करके कंप्यूटर इंजीनियर की बात पे विश्वास करेगा. सो इट डिपेंड्स किसके लिए कौन सा सोर्स ज़्यादा क्रेडिबल है और कौन सा कम क्रेडिबल है. गॉट इट. एंड अट्रैक्टिवनेस वो सिंपल सी चीज़ है. In the case, some products such as car sales may not increase if they are publicized, not necessarily by experts but by popular public figures. उनको experts नहीं चाहिए, उनको चाहिए ऋतिक रोशन वो गाड़ी चला रहा हो. ठीक है. मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स. अब मैसेज कैसा है, मैसेज रैशनल है, लॉजिकल अपील है या इमोशनल अपील है उस मैसेज में, तो अब वो डिपेंड करता है कौन से सिचुएशन में कौन सा ज़्यादा मैसेज वर्क करेगा. जो यहाँ पर आगे कुकर वाला एग्जाम्पल है ये वाला. ठीक है, इसमें रैशनल अपील क्या है कि अगर आप कुकर में सब्जी बनाओगे प्रेशर कुकर में, तो आपकी जो गैस है वो कम यूटिलाइज होगी, कुकिंग गैस कम यूटिलाइज होगी. तो अब यहाँ पर क्या है, पैसे बचाने का कॉन्सेप्ट है, तो वो क्या है, रैशनल अपील है. एक जगह आप बोलो कि इस कुकर में सारे मिनरल्स प्रिजर्व्ड रहते हैं, इससे बहुत हेल्दी सब्जी बनती है, तो वो इमोशनल अपील हुआ कि फैमिली के लिए बहुत अच्छा है यार, ये तो ले लेते हैं, इट विल इंक्रीज द हेल्थ ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स. तो इन मोस्ट केसेस दोनों इक्वली वर्क करते हैं, बट इमोशनल अपील इज ऑफ कोर्स मोर क्रेडिबल देन द रैशनल अपील. ठीक है. Attitude will change when the amount of information that is given about the topic is just enough, neither too much nor too little. When the message contains a rational or an emotional appeal also makes a difference. For example, an advertisement for cooking food in a pressure cooker may point out that this saves fuel such as cooking gas (LPG) and is economical, which is a rational appeal. Alternatively, the advertisement must say pressure cooker preserves nutrition and that if one cares for the family, nutrition would be major concern. तो अब कौन किस चीज़ को ज़्यादा फेवर करता है, किसी को मे बी पैसे बचाने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जो मान लो अकेला इंसान है उसको पैसे बचाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो पैसे बचाएगा, और कोई है जो फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसकी फैमिली है प्रॉपर, तो वो क्या ज़्यादा कंसर्न करेगा कि मेरी फैमिली कैसा खाना खा रही है, उसको न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है नहीं मिल रहा है. सो इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द पर्सन. ठीक है. Then comes the motives activated by the message also determine attitude change. For example, drinking milk may be said to make a person healthy and good looking or more energetic and successful at one's job. ठीक है. Finally, basically motive क्या है, आप चाह रहे हो कि आप हेल्दी रहो या फिर आप गुड लुकिंग रहो. ठीक है, उस पर डिपेंड करता है. कोई हो सकता है अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो, कोई हो सकता है लुक्स कॉन्शियस हो. सो इट डिपेंड्स आपके कौन से मोटिव को वो हिट कर रहा है. ठीक है. then which one is this? मोड लास्ट आपका वो है टॉपिक इन दिस मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स वाले में. ठीक है. सो द मोड ऑफ स्प्रेडिंग मैसेज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल. फेस टू फेस ट्रांसमिशन होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है. अगर आपके पास लोग आ रहे हैं बताने, लाइक इन दिस एग्जाम्पल कि ORS प्रोटेक्ट करता है चाइल्ड को, तो आपको ये करवाना चाहिए, ये वाली वैक्सीन लगवानी चाहिए, ऐसा करना चाहिए. ठीक है. तो आप क्या करोगे,
वो चीज़ ज़्यादा बिलीव करोगे रादर देन द एडवर्टीजमेंट्स. एडवर्टीजमेंट करते हैं बट फेस टू फेस ज़्यादा इफेक्टिव होता है रादर देन वॉचिंग इट ऑन अ टेलीविजन. ठीक है. is more effectively created if a community social worker or doctor spread the message talking to people directly. These days, transmissions through visual media such as television and internet are similar to face-to-face interaction, but substitute तो नहीं है. अगर आपके सामने आके कोई बोलेगा तो आप definitely उसको ज़्यादा believe करोगे rather than listening to the radio or listening to the television. ऐसे. Target characteristics. Qualities of the target such as persuasibility, strong prejudices, self-esteem and intelligence influence the likelihood and the extent of attitude change. जो इंसान है उसका उस चीज़ के टुवर्ड्स कितना ज़्यादा परसुएबल है, वो अच्छे जल्दी से चीज़ें मानता है कि नहीं मानता है, उसके अंदर कोई स्ट्रांगली इस्टेब्लिश्ड प्रीजुडाइसेस या उसके बारे में एटीट्यूड तो नहीं है एकदम फर्मली इस्टेब्लिश्ड. अगर फर्मली इस्टेब्लिश है तो वो नहीं करेगा उस चीज़ को चेंज. सेल्फ एस्टीम कैसी है, हाई है तो वो रेयरली उस चीज़ को अग्री करेंगे टू चेंज. लेकिन अगर लो है तो वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं टू गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स थिंग्स. ठीक है. और इंटेलिजेंस, अगर वो नॉलेजेबल है, इंटेलेक्चुअल है, तो वो बहुत रैशनल डिसीजन लेकर समझेंगे कि एटीट्यूड चेंज करना है कि नहीं करना है. देन अ पर्सन हु इज नॉट सो इंटेलिजेंट, वो जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे क्या ठीक है कर लेते हैं एटीट्यूड चेंज, क्या ही जा रहा है. ठीक है. सो people who have a more open and flexible personality, who are persuadable, change their attitudes more easily. Advertisers benefit most from such people. People with strong prejudices are less prone to change any attitude क्योंकि उनके अंदर वो strongly established है तो वो जल्दी से change नहीं करेंगे. Then people who do not hold such prejudices, जिनकी low self esteem होती है, they do not have sufficient confidence in themselves, तो वो जल्दी से दूसरों की बात मानकर उस चीज़ को, उसकी पर्टिकुलर चीज़ के towards attitude change कर लेते हैं. ठीक है. And then comes more intelligent people. People are less easily changing their attitudes than the people who are less intelligent. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रैशनल होते हैं, वो सोच समझ कर अपने डिसीजंस लेते हैं. However, sometimes more intelligent persons change their attitude more willingly than less intelligent ones because they base their attitude on more information and thinking. उसको चीज़ के बारे में ज़्यादा information मिल रही है, वो उस चीज़ पे agree कर रहे हैं, तो they are okay with it. ठीक है. We have covered this particular topic in very much detail and I know this required at that time. It was a very very important topic and I hope it is clear to you now. If you have any doubts, do put it down in the comments below. I am there for you guys to help you out with every single topic that you struggle with. So do let me know, did you like this lecture, and I'll see you in my next videos with the next topic, which is attitude, behavior, relationship, and do check the notes that I put in the description below. Okay. So I'll see you in my next videos. Tab tak ke liye take care and bye bye.